सही है मैं ये भी। Go ahead. अ, मतलब जैसा हम सुनते हैं कि जब हमें बॉडी नहीं मिली थी, एट दैट टाइम वी वर जस्ट सो मच, वी हैड दैट क्रेविंग, आवर सोल हैज दैट क्रेविंग कि हमें बॉडी मिले, बॉडी मिले, बॉडी मिले। बट व्हेन वी गॉट दैट, फिर कुछ और, फिर कुछ और, वो मतलब ब्रिक तृष्णा की तरह आगे बढ़ता ही जा रहा बिल्कुल. है ना? Absolutely. एंड एवरीबडी, आई वाज लिसनिंग अ डिस्कोर्स ऑफ ओशो टुडे। सारी चाहत तो बॉडी के साथ ही है. हाँ बिल्कुल The बिल्कुल। moment you leave this body, सारी चाहत खत्म. हाँ, but this is the medium also, na, for all the things. Yeah, this is the medium to Like travel on this to, beautiful blue planet called Earth. yes, of course. यहाँ पे चलने के लिए आपको इस व्हीकल की जरूरत है. हाँ जी Yes. प्रणव जी, लेट्स स्टार्ट विद प्रेजेंटेशन। Yeah. Yeah. Yes. प्लीज Hello गो अहेड। Yes, Sanjay, everyone. go ahead. Welcome. So should I? संजय आई वांट यू टू बी वेरी ब्रीफ, प्रेसाइज एंड वेरी फोकस्ड, राइट? सो See, Nilesh, uh, I will go with the flow. ओके, गो अहेड प्लीज। या Okay. Yeah. So my because the book I am going to present, that is really a big book. We have been spending too many months, बहुत महीनों से हम उसी बुक को पढ़ रहे हैं। तो सी, उसको आई विल ट्राई टू बी मोर प्रिसाइज, येट द फ्लो इज वेरी नेचुरल। हेलो एवरीवन, इज माय स्क्रीन विजिबल? Yep. Yeah, thank you so much. So before we start, Becoming Supernatural by Joe Dispenza. That is a beautiful, beautiful book I have read. And somebody asked me a question, which is your favorite book? So I said, whichever book I start reading, that becomes my favorite. Because if I stick to a book for some days continue, and if I read it up to 50%, that means it has become my favorite at that time. Otherwise, I leave the book. If it does not meet with my frequency, I leave the book after 1/4 even. So today I'm going to present Becoming Supernatural. And before I start, this is my brief introduction. Everybody knows we all have been working, and we have all have been learning and on this journey of learning for so long. So I'm not going into detail. So what is my biggest take on this book? It is itself in the introduction part of the book. The truth is stranger than fiction. And to all of us surprise, we are living in the fictional world. We don't face the reality more and often. So we are more, because what we believe, we are far more powerful than that. हमने अपने आप को बहुत छोटा असेस किया है, बहुत बहुत छोटे लेवल पे समझा हुआ है, बट हम बहुत बड़ी एंटिटी का पार्ट हैं. वी आर फार मोर पावरफुल, ऑल द शक्तिमांस आर विद इन अस, एंड दिस बुक इज अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन ऑफ दैट. क्योंकि इस बुक में ये दिखाया गया कि पीपल जो हैं हु वर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक इलनेस, बाय चेंजिंग देयर इनर वर्ल्ड दे गोट हील्ड फ्रॉम दोज क्रॉनिक इलनेस. एंड व्हेन द बुक स्टार्ट्स, it tells that mind and body are deeply connected. Thoughts are, because thoughts affects our biology. In NLP itself, it is told that physiology affects psychology and psychology affects physiology. So what is psychology? Our thoughts are our psychology. So thoughts affect biology. So let us start with chapter 1. Today I will present the chapter book summary chapter wise, so that I have read till Pineal Gland this book, and that only I will present today. But the crux I will share at the end. And if you all agree, I will take you to a short meditation also that I have started practicing. So let us go for the reading. Am I audible and my screen is visible to all? Once Yes, give me a thumbs या up या वेरी वेरी क्लियर। या so that I should Yes, continue. very clear. Now, first chapter talks about opening the door
My network got disconnected. So I'm sharing my screen once again. Now, once again, please let me know, is my screen visible? Yes. Yeah. If there's a network challenge, Sanjana, you just switch off your own video. Okay, okay. I'm just doing. I'm doing. Just let me turn off my video first. Is it okay now? Yeah, perfect. Go ahead. Now let me go ahead. Screen is not getting shared. Yeah, we can see the screen. It's perfectly all right. Chapter 1, opening the door to the supernatural. Okay, I'm not able to You want to see. share the you want to share the presentation, right? Yeah. Somali roti Presentation lana. on कर लीजिए. Just switch on the presentation. Somali roti. I don't know how it is not showing to me. Yeah. Now I am. Okay. I'm starting. Yes, chapter 1, opening the door to the supernatural. Becoming supernatural itself starts with becoming the supernatural. The author starts with a live case study of Annie who loses her husband, and when she suffers a lot of physical, mental issues, and so on. But when somehow she comes across Joe Dispenza, she attends her workshops, and she starts believing that she can rewire her life through thoughts alone, because brain is rewirable through thoughts alone. So the entire chapters tells Annie's life instance, and then how she became what she wanted to through just rewiring her brain with the help of meditation and thoughts. So in this way, this chapter tells the key idea: think greater than your environment, body and time. What do we have? Means हमारी सबकी क्या, where do we lack? हम सब सोचते हैं कि नहीं हमारा इतना ही potential है. We cannot go beyond that. We cannot go beyond that. So this is our biggest issue that we face. So here in the first chapter, with the example, author clears ki if you want to become supernatural, natural you are already natural. When you go beyond limitation, you become supernatural. जो आपकी अब limitations हैं क्या, जो हमने set की हुई है, हमारे brain ने set की है कि this is the boundary, I cannot go beyond that. But when you start thinking beyond that, and when your thoughts starting going beyond that, you start becoming what you want to become. Because आपकी थॉट्स जहां जा रही है ना, हर चीज एक थॉट्स के साथ ही स्टार्ट हुई. अभी जैसे कि अभी फोन की हम बात करें अपनी लाइफ, रियल लाइफ में फोन. अभी मेरी मदर इन लॉ यूज्ड टू टेल, शी व्हेन शी पास्ड अवे 2 years back, she was more. की problem. So pardon. It's So okay, at sir. that time she used to tell कि जब हम बहुत साल पहले हम लोग ना बात किया करते थे बिफोर फ्रीडम 1947, वी यूज्ड टू टॉक कि एक ऐसा डिवाइस आएगा जिसमें बंदा चलते फिरते ना दूसरे को देख पाएगा. एट दैट टाइम इट वाज स्ट्रेंज कि ये क्या बकवास है, ऐसा हो नहीं सकता. बट नाउ इन द फॉर्म ऑफ फोन इट इज प्रैक्टिकल. सो वंस इट केम इन थॉट, द पर्सन हु invented phone, he did supernatural work. Because natural thing कि कोई सामने जब मिलेगा तब उसको देख पाएंगे, बट supernatural क्या था कि जब वो ऐसा डिवाइस उसने इन्वेंट कर दिया तो उसने पहले वो थॉट लाई अपने दिमाग में, yes it is possible, and it came true. So the entire book talks about कि you just think beyond the limitations. So the first chapter emphasizes upon कि brain is rewirable through thoughts alone, and key idea of the chapter is think greater than your environment, body and time. अभी अभी कल मैंने एक न्यूज देखी कि एक पर्सन, एक लड़की की जॉब लगी IIT में, and her package is I think 64 lakhs per month, and her father was, वो गली में फेरी लगाते हैं ना, फेरी बर्तन बेचते हैं, he was that. बट वो लड़की ने नहीं सोचा कि दिस इज नॉट माई बाउंड्री. शी थॉट बियॉन्ड द लिमिट्स, एंड शी रिवायर्ड हर ब्रेन
and created the supernatural things. That was supernatural for her. So in this way, the chapter 2 continues with the power of present moment, because author stress कि most people live in stress, past based or future fearing. या तो हमारा जो मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ जाता है, पास्ट में जो रहा, यानी कि गिल्ट में रहते हैं हम, गिल्ट रहता है, पास्ट का सोचते हैं तो गिल्ट आता है, फ्यूचर का सोचते हैं तो स्ट्रेस होता है, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो गिल्ट भी स्ट्रेस ला रहा है, तो ऑथर सेज कि मोस्ट लिव इन स्ट्रेस पास्ट बेस्ड और फ्यूचर फीलिंग। या तो हम पास्ट में जी रहे हैं, प्रेजेंट फ्यूचर में जी रहे हैं, और हम पास्ट और फ्यूचर के लूप में ऐसे फंसे हुए हैं कि हमारा पास्ट ही हमारा फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। So then author tells कि true changes happens only in the present moment. Meditation connects you to the quantum field. अब इस पिक्चर से समझते हैं इसको, क्योंकि जब हम, अब इस पिक्चर में बिल्कुल क्लियर है कि टेकिंग योर एनर्जी एंड पावर बैक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसमें बड़े अच्छे से क्लियर किया गया है। पास्ट जो है वो हमारे फ्यूचर को डिसाइड कर रहा है। अभी एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको ऑथर ने समझाया, या मुझे भी मतलब उन सब चीजों को फील किया कि मैंने, जैसे हम ब्रश करते हैं, हमारा एक मॉर्निंग में उठने का रूटीन है कि हम उठ के एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करते हैं। हमने कल अगर उठ के अपना पहले राइट फीट नीचे रखा, या किसी सर्टेन काइंड ऑफ पोस्चर में उठने की हमारी हैबिट है, या किसी सर्टेन पोस्चर में हैबिट है, तो हम आज भी वही काम करेंगे, और आगे आने वाले कल में भी वैसे करेंगे। जैसे हमारा राइट हैंड से इफ वी ब्रश, तो ब्रश हम वैसा ही करेंगे। तो अगर हमें कुछ चेंज करना है अपनी लाइफ में, तो चेंज कहाँ हो सकता है? पास्ट को अगर हम खींचते रहेंगे कि पास्ट में ऐसा किया था अब भी वैसा ही हो करेंगे, तो फिर फ्यूचर वही का वही है, ऑटोमेटिक है, वो तो ऑटोमेटिक चल रहा है। अब हमें चेंज जहां क्रिएट करने हैं वो है प्रेजेंट मोमेंट में, बिकॉज पावर इज इन द प्रेजेंट। क्योंकि जब हम पास्ट के बारे में, पास्ट में अटके रहते हैं, तो हमारा फ्यूचर चेंज नहीं हो सकता, और फ्यूचर के बारे में तो हम पहले सोच ही नहीं सकते, सोच भी रहे हैं तो वो सिर्फ स्ट्रेस ले रहे हैं। तो हमें काम कहाँ करना है? फ्यूचर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? पास्ट का हम कुछ कर नहीं सकते, फ्यूचर का कर सकते हैं, तो वो कहाँ से कर सकते हैं? वो प्रेजेंट से कर सकते हैं। तो वो दैट ऑथर टेल्स की बहुत पावरफुल है, जो वो प्रेजेंट मोमेंट ही है, जो हैपन होना है वो अभी होना है, अभी प्रेजेंट मोमेंट में है जो अब हम कर रहे हैं। तो जब हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं। हमारा प्रेजेंट चेंज होता है तो फ्यूचर चेंज होता है हमारा, पास्ट हमारे फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकता। इसी तरह से फिर चैप्टर 3 की बात करें, तो हेयर हेयर ही टेल्स द क्वांटम फील्ड की बात की है इसमें। पिछले सेशन में भी मैंने क्वांटम फील्ड के बारे में बहुत बात की थी। क्वांटम फील्ड ये इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज का फील्ड है, जो हमारे पास, जो हम चाह रहे हैं ना, चाहे हम अच्छा चाह रहे हैं चाहे वो बुरा चाह रहे हैं, वो सब हमारे एग्जिस्टेंस में है, क्वांटम फील्ड में है। हम उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि बार बार सोच दे रहे हैं, बिकॉज वेयर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, और हम उसी को एनर्जी दे रहे हैं और इसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर ऑथर ने क्या कहा कि हम अपने, जो हम न्यू रियलिटीज को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, उसी के ही इमोशंस को, बिकॉज लास्ट उसमें मैंने इमोशंस पे बहुत अच्छे से मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे, तो आई थिंक उसको मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रही, बिकॉज शुरू में ही बोल दिया कि बड़ा शॉर्ट और प्रिसाइज रखना है। तो दैट्स आई एम गोइंग पॉइंट वाइज, कि छोटा छोटा थोड़े थोड़े में। तो एलिवेटेड इमोशन की बात की कि अगर हम, जो हमें फ्यूचर में चाहिए, क्योंकि हर थॉट के साथ एक इमोशन होता है, इमोशन हमारी बॉडी पे आता है, इमोशन हमारी बॉडी के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है। हर थॉट के साथ जो फीलिंग आई, फीलिंग से जो इमोशन बना, वो इमोशन हमारी बॉडी को, बॉडी पे विजिबल होता है, बॉडी उस इमोशंस के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है। तो अब उसमें हमें जो चेंज करना है, वट एवर वी वॉन्ट टू चेंज, तो वो एलिवेटेड इमोशन हमें पहले ही सोचना पड़ेगा। जो हम अपनी न्यू रियलिटीज क्रिएट करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड इमोशंस को पहले सोचना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा उसको। इमेजिनेशन में उन थॉट्स को इमेजिन करेंगे पहले, फिर उससे रिलेटेड फीलिंग आएंगी, और फिर उससे रिलेटेड इमोशन होंगे, जिनको हमें एलिवेट करना होगा, ताकि हम न्यू रियलिटीज को, बिकॉज ऑथर इज वेरी क्लियर एंड लो ऑफ अट्रैक्शन इटसेल्फ सेज, ये बिल्कुल टोटल लो ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है कि लो ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। हम उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं जो हम बार बार फील कर रहे हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हम सोच रहे हैं वो नहीं, क्योंकि सोच से तो हमारी फीलिंग और इमोशंस है। हम सोचे कि हमने तो बहुत अच्छा सोचा, बट हमारी इमोशंस में तो वो चीज पड़ी रही। तो हमें इमोशंस को सबसे पहले थॉट्स डेलिबरेटली चेंज की, और
फिर उससे रिलेटेड फीलिंग्स और फिर इमोशंस चेंज हुए, हमारी बॉडी माइंड और ब्रेन में कोऑर्डिनेशन हुआ और हम अपनी रियलिटीज को, नई रियलिटीज जो हमें चाहिए अपनी लाइफ में, जो हम चाह रहे हैं, उसको हमने अट्रैक्ट करना शुरू किया। और द ऑथर इज वेरी क्लियर कि अपने जो डिजायर्ड फ्यूचर है ना, वो इससे पहले कि रियलिटी बने, पहले उसको हमें फील करना होगा। फील करना होगा तभी उससे रिलेटेड इमोशन हमें आएंगे और हम उनसे एलिवेट करेंगे, ताकि हम मेडिटेशन में जब हम बैठे तो उन्हीं इमोशंस से हम उस रियलिटी को अट्रैक्ट करें। वी विल बिकम, बिकॉज जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं और उस एलिवेट इमोशन के साथ बैठते हैं तो हमारे चारों ओर एक, अभी पिछली पिक्चर में जैसे बता रखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है जब हम उस इमोशन के साथ बैठते हैं करंट मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इट वर्क्स लाइक द मैग्नेट, हमारे फ्यूचर से उस रियलिटी को अट्रैक्ट करता है वो। इट ब्रिंग्स द डिजायर्ड फ्यूचर फॉर अस। सो सबसे पहले जिस पे मतलब बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया ऑथर ने इस पूरी बुक में, कि हमें अपने इमोशंस को एलिवेट करना होगा, जो हमें चाहिए, जो कि अभी हमें हो रहा है ऑटोमेटिकली नहीं। वी आर नॉट टू बिकम, बिकॉज जो ऑटोमेटिक आ रहे हैं वो तो पास से उठ के आ रहे हैं ना। तो हमें चाहिए जो फ्यूचर में हमें नई रियलिटी क्रिएट करनी है, तो उससे रिलेटेड इमोशन को हमें प्रेजेंट में ही काम करना पड़ेगा, तभी हम नई रियलिटी को अट्रैक्ट कर पाएंगे और अपने डिजायर्ड फ्यूचर को पहले से फील करना शुरू करेंगे बिफोर इट बिकम्स रियल। अब इस चैप्टर के इस पार्ट को उन्होंने अपने बेटे के एग्जाम्पल से समझाया। जेस जेस के एग्जाम्पल से बहुत ब्यूटीफुली समझाया। मैं शॉर्ट में शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ उसको, कि जेस उनका एक बेटा है, ओल्डेस्ट सन, जो अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद बाहर टूर पे जाता है और वो काम वाम करता है, बट उसके बाद उसके मन में आती है कि मैं कुछ नया काम करूं। एंड उसको जो डिस्पेंजा फिर ही कॉल्स हिज फादर एंड ही टेल्स हिम कि जो आपको करना है ना, व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू कैन ट्यून इन टू द रिलेटेड टू अ न्यू जॉब फॉर यू। तो क्वांटम फील्ड को के साथ आपको ट्यून इन होना है। तो he tells him a practical work. If you say I will share that, would you like to listen that what he tells Jace? And that is very, because इसने मुझे बहुत इफेक्ट किया। इसके साथ फिर मैंने प्रैक्टिकल करना शुरू किया और मेरी लाइफ में मैंने बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट की। So just that was the, would you like to listen that? If you allow me, Yes, please Sanjana. type by. Yes, Smita, please go ahead. या Like to तो listen. जैस की बात Sanjana. करते हैं, तो जैस जो है उनका बेटा था एंड जब वो जॉब वॉब में लगा, उससे उसको डिससेटिस्फेक्शन थी, फिर वो किसी एक्सपीडिशन पे गया, आई विल शेयर इन शो। एंड फिर उसके माइंड में आया कि मुझे नया करना है। उसने स्केटिंग वेटिंग का कुछ समथिंग ऐसा था, बिकॉज इट हैज बीन सो लॉन्ग आई हैव रेड दैट। तो उसके बाद जब उसे लगा कि मुझे कुछ नया करना है, तो देन हिज फादर सजेस्टेड हिम एन एक्टिविटी। ही टोल्ड हिम कि एक पेपर लेके आओ और बीच में जे लिखो, मतलब व्हाट डू यू वांट। He told him to write J on it and draw two squiggly lines around it to represent the electromagnetic field. उसे बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को इमेजिन करके उन स्विगलिंग लाइंस बनाओ अपने नेम के फर्स्ट लेटर के अराउंड, एंड आई विल शेयर दैट पिक्चर ऑल्सो। उसके एक साइड इंटेंशंस लिखो और एक साइड उससे रिलेटेड एलिवेटेड इमोशंस कौन से चाहिए। तो उसमें आपको जो आपकी इंटेंशंस है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और एलिवेटेड इमोशन भी क्लियर होने चाहिए, और इससे बनेगी एक न्यू एनर्जी, एक न्यू क्वांटम फील्ड आप क्रिएट कर पाओगे। तो उसमें उन्होंने एक साइड इंटेंशन लिखी अपनी, जिसमें थॉट्स लिखे कि आपको क्या चाहिए। ही टोल्ड कि मैं कहीं से भी काम करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट अ बाउंडेड वर्क, कि मुझे एक ही जगह पे रहना है। फिर जितनी अमाउंट मनी में आप कमा रहा हूँ उतनी कमानी है। देन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6 मंथ और अ ईयर मुझे चाहिए, और मैं अपने वर्क को लव भी करना चाहता हूँ। इस तरह से उसने अपनी थॉट्स बताई। ही टोल्ड हिम टू राइट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पेपर, देन ऑन द राइट साइड he told him to write the elevated emotions with that feelings, thoughts थी कि ये है। फिर उससे रिलेटेड इमोशंस क्या आएंगे आपको। he said कि मुझे empowered फील होगा, I will be in love with life, I will free and I will be grateful. तो he told him to write on the right side those elevated emotions। मतलब एक बार पहले थॉट्स भी हमें क्लियर होनी चाहिए कि हमें थॉट्स कौन सी चाहिए, एंड देन फिर हमें
वो भी क्लियर होना चाहिए कि हमें कौन सी, मतलब इमोशंस कौन सी चाहिए। जब जेस ने ये लिखा और उसके साथ फिर उन्होंने उसको मेडिटेशन पे बैठने को बोला कि उसको बैठना है, फील करना है कि वो उन एलिवेटेड इमोशंस के साथ फिर उन सभी न्यू रियलिटीज को अट्रैक्ट करना है। एंड ही डिड द सेम एंड आफ्टर 6 months और सो ऐसा कुछ टाइम उन्होंने मेंशन किया उसमें कि ही वाज एग्जैक्टली लिविंग द लाइफ ही वाज looking for. So this is really very powerful technique. I will share the pic. The pic will give you more clarity. I forgot to mention in this. I think हाँ नहीं, मैं इसमें mention करना भूल गई। इसमें वो मैं स्लाइड में डालना भूल गई वो पिक। दैट इज वेरी डियर टू मी। मैं उस पिक को उन दिनों में तो मैंने बहुत देखा जब मैंने किया। आई वॉज वर्किंग ऑन समथिंग एंड उसी के साथ मैंने अपने प्रैक्टिकल्स किए। सो दैट वाज मतलब वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी एंड दैट हेल्प मी अ लॉट। अभी मैं बहुत सारी चीजों के साथ उसको अप्लाई करती रहती हूँ। तो ये एक और पिक्चर इस चैप्टर में शेयर की गई कि नो फैमिलियर पास्ट तो फिर नो प्रेडिक्टेबल फ्यूचर, क्योंकि अननोन में जाना है, हमें सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। इस पिक्चर में बताया गया कि ईच लेटर रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट पोटेंशियल। आर इज न्यू रिलेशनशिप, जे इज फॉर न्यू जॉब, P is a problem being resolved in your life, M is a mystical experience, G is a genius mind, H is health, A is abundance and O is new opportunity. तो ये सब चीजें जो हैं, ये सब प्रेजेंट मोमेंट में जब हम एलिवेटेड इमोशंस के साथ बैठते हैं, बिकॉज ऑथर ने ना हर चैप्टर में मेडिटेशन की बात की है। मेडिटेशन के अलावा उन्होंने कोई दूसरी टेक्निक नहीं बताई। हाँ, मेडिटेशन के साथ उन्हें, बिकॉज दिस बुक इज ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ऑथर ने सिर्फ बात नहीं की, डॉक्टर जो है, क्योंकि बिकॉज इज अ डॉक्टर, तो उन्होंने उनके एविडेंस प्रेजेंट किए हर चीज की। स्पेशली इसमें लीव्स लगे हुए हैं जो उन्होंने उस समय स्कैन किए, ब्रेन्स के, हर्ट के, सारे स्कैन्स के पिक्स लगे हुए हैं कि हर प्रैक्टिस के साथ कैसे कैसे स्कैन्स चेंज होते हैं। तो ऑल वर नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड इन द, दैट्स व्हाई इन लास्ट सेशन आई हैव टोल्ड कि ये बहुत बड़ी बुक है, तो इसको 20-25 मिनट में एक्सप्लेन करने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि जिसको इतने महीने पढ़ा हो तो 1 घंटा भी छोटा लग रहा है, बट येट आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट इट। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बायोफील्ड है, बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा, वो नई रियलिटीज को अट्रैक्ट करने का तरीका है। अभी सारी रियलिटीज, क्योंकि हमारी लाइफ क्या चाहिए हमें, या हमें रिलेशनशिप अच्छी चाहिए, या हमें न्यू जॉब चाहिए, या हमें प्रॉब्लम बिंग रिजॉल्व इन आवर लाइफ चाहिए, मिस्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए जो स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहते हैं, या फिर हमें जीनियस माइंड चाहिए, या हेल्थ चाहिए, या अबंडेंस चाहिए, या नई अपॉर्चुनिटीज चाहिए। जो भी चाहिए हम अट्रैक्ट कर सकते हैं प्रेजेंट मोमेंट में एलिवेटेड इमोशंस के साथ। So this is beautifully presented in this chapter. Third chapter is very wonderful. I would recommend कि सभी third chapter को पढ़ो। बात करते हैं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप वो चीजों पे आ रहे हैं। मैं सेशन में हूँ। सक्षम को फोन कर। सेशन में। हाँ, sorry, there was a call. So, fourth chapter talks about blessings of the energy center. अब एनर्जी सेंटर्स के बारे में पिछले हमने सेशन में कुछ बात की, तो लेट्स टॉक अबाउट सम मोर डिटेल्ड फॉर द एनर्जी सेंटर। एनर्जी सेंटर मेनली हमारी बॉडी में बहुत सारे एनर्जी सेंटर हैं, बट मेन 7 सेंटर्स हैं चक्रास, जिन एनर्जी सेंटर्स पे ऑथर बात करते हैं। और इन सबको एनर्जाइज कैसे किया जा सकता है, ब्रीदिंग के साथ, ब्रेथ टेक्निक्स हैं, और इंटेंशन टू एक्टिवेट एंड अलाइन ईच सेंटर। हर सेंटर की अब दूसरे के साथ अलाइनमेंट होनी भी जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक सेंटर को एक्टिवेट करें, दूसरे को इग्नोर करें। सभी को इंटेंशनली एक्टिवेट करने का, क्योंकि नीचे के जो चक्रास हैं, लोअर एनर्जी सेंटर्स हैं, वो कुछ कुछ तो रेगुलेट रहते हैं, कुछ कुछ डिस्टर्ब रहते हैं, समथिंग मतलब कुछ ऐसा वैसा चलता रहता है उनके साथ, क्योंकि उन 3 का तो नेचुरली रन करना बहुत जरूरी है नेचर की व्यवस्था बनाने के लिए। वो डिस्टर्ब रहते हैं, बीमार रहते हैं, और अगर हम इन सब को, परंतु ऊपर के चक्रा में हमें एनर्जी को लेके जाना होता है। जब हम अपनी लाइफ में हायर पोटेंशियल्स पे जाना चाहते हैं, तो हम अपनी एनर्जी को
अपर एनर्जी सेंटर्स में ले जाना बहुत जरूरी है, अपर चक्रास में, जिसको हम ब्रेथ्स के साथ और इंटेंशंस टू एक्टिवेट के साथ उनको एक्टिवेट कर सकते हैं एंड अलाइन करें ईच सेंटर को, जिससे क्या होता है, हमें हेल्प मिलती है हीलिंग में, कोहेरेंस में और इमोशनल बैलेंस में। अब इसको फिर उन्होंने इस पिक्चर से समझाया कि हमारी जो सोल है सबसे ऊपर, सोलर प्लेक्सस, सॉरी, हमारा जो क्राउन चक्र है उसे ऊपर सोल की सीट मानी जाती है। वहां पर ये 7 चक्रास हैं। सबसे पहला है इंफीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सस, सेक्सुअल ग्लैंड है ये हमारा, रूट चक्रा, जिसे हिंदू उसमें मतलब इंडियन मैथोलॉजी में उसको रूट चक्रा बोला जाता है। फिर है सुपीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सस, ये हमारे डाइजेस्टिव और पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स हैं। फिर उसके बाद सोलर प्लेक्सस आता है, वो हमारे एडर्नल ग्लैंड्स पे है, काम करता है। और ऊपर के सेंटर्स एनर्जी सेंटर और नीचे के सेंटर्स में जो एक कनेक्शन है वो हमारा हार्ट प्लेक्सस, थाइमस ग्लैंड जहां पर सिचुएटेड है। फिर है थायराइड प्लेक्सस, थायराइड ग्लैंड जहां पर है। पीनियल प्लेक्सस, पीनियल ग्लैंड हमारी सोल की सीट और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सोलर, हमारे चक्रास में, मतलब हमारे ये एक तरह से एंटीना है जो हायर हायर सेल्फ से हमें कनेक्ट करता है, हमारा पीनियल ग्लैंड। और अगर हम साइंटिफिक वे में देखें, साइंस की नजर से देखें, तो ये एक छोटा सा ग्लैंड है जो इसके इसके बारे में आगे आगे एक चैप्टर में हम बात करते हैं। फिर है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी प्लेक्सस। तो इस तरह से करके फिर अभी हमारी एनर्जी नीचे के लोअर चक्रास में, हमारी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टक हुई हुई है। हमारी मोस्ट एनर्जी जो है, क्योंकि हमारे सर्वाइवल के, हमारी लाइफ का सबसे पहले बेसिक इंस्टिंक्ट क्या है, सर्वाइवल। जब तक हम अपनी बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान और सेक्स नीड्स ये सब पूरी नहीं होंगी, तब तक हम अपर किसी और की बात ही नहीं कर सकते, ग्रोथ की बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं बात कर सकते। किसी के पेट में रोटी नहीं है, किसी के सिर पे कपड़ा नहीं, किसी के सिर पे छत नहीं है, सिर पे ढकने को कपड़ा नहीं है और तन पे कपड़ा नहीं है और सेक्सुअल उसमें वो फंसा हुआ है, तो वो आगे ऊपर किसी बात ही नहीं कर सकता हो। तो वो हमारी एनर्जी नीचे के चक्र में मैक्सिमम लोगों की स्टक है। अब सबसे पहले रूट चक्र है, वो सेक्सुअल डिप्रेविटी, सेक्सुअल एडिक्शन, सेक्सुअल एंजाइटी, सेक्सुअल कंफ्यूजन, पेन, ट्रोमा, मोलेस्टेशन, ये सब चीजें अगर हम फील कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी लोअर चक्र यानी कि रूट चक्र में ही फंसी रहेगी, जिससे वो इम्बेलेंस रहता है। बहुत सारी हमें हमारी जो इम्यून सिस्टम की डिजीजेस हैं वो मैक्सिमम हमारी रूट चक्र से आती हैं। फिर अगर हम गिल्ट, शेम और पेन में रहते हैं, अनवर्दी, लैक, विक्टिमाइजेशन, ये भी ऑथर ने बहुत अच्छे से डिटेल में, मतलब ये बहुत ब्यूटीफुल चार्ट है, बहुत सारी पिक्चर्स इसमें दी गई हैं, मुझे कुछ जो स्पेशल लगी आई हैव टेकन दैट। गिल्ट, शेम, पेन है तो हम अपने सैक्रल चक्र पे ही फंसे हुए हैं, रूट चक्र से सैक्रल चक्र, ये 3 है मेन जिनमें हमारी एनर्जी स्टक रहती है। अगर इनको क्लियर कर दिया जाए, इन 3 के नीचे की ब्लॉकेजेस को क्लियर कर दिया जाए, तो फिर एनर्जी ऊपर की तरफ जाना शुरू होती है, फिर हम हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारी इसी लाइफ की स्ट्रक है, हमारे पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस भी उसमें है बहुत को। तो ये नहीं कि वो ठीक नहीं हो सकते, कभी तो ठीक होनी है, कहीं ना कहीं से तो ठीक होने हैं, बिकॉज ऑथर ने बहुत ब्यूटीफुली इसमें बताया है कि जीन्स भी चेंज होते हैं। जीन्स को चेंज करने की जरूरत नहीं, उनको रिवायर किया जाता है, जीन्स को भी रिवायर किया जाता है। अब हमारा सोलर प्लेक्सस है वो कंपटीशन कंट्रोल, अब कंपटीशन हम सब फंसे हुए हैं उसमें, इम्पेशंस है, ईगो है, सेल्फ एग्रेजाइजेशन, मतलब जो भी ये सब चीजें है ना, ये इनमें हमारी एनर्जी स्टक है। अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमें कहाँ काम करने की जरूरत है। फिर अब इन सब से बाहर निकल कर, मतलब इन सब को बैलेंस करके, अब इनको इग्नोर तो नहीं कर सकते, जब तक इनको हील नहीं करेंगे ना इन नीचे के चक्रास को, एनर्जी ऊपर जाने में दिक्कत आएगी। और जब तक एनर्जी ऊपर नहीं पहुंचेगी ऊपर के चक्रास में, तो हम अपनी ट्रू पोटेंशियल नहीं जी सकते लाइफ की। दिस हैज बीन माय लाइफ एक्सपीरियंस ऑल्सो, एंड चैप्टर में मतलब इतना ब्यूटीफुली जो साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया, दैट इज मार्वलस मार्वलस, मतलब मजा आ जाता पढ़ के। फिर है चैप्टर 5 कि अब सारी बात समझ आ गई हमें कि हम यहाँ यहाँ अटक गए हैं, कैसे हमारा काम करता है, कैसे रिवाइज, अब उसको किया कैसे जाए। अब प्रोसेस की बात होती है इस बुक में कि हम अपनी बॉडी को न्यू माइंड के लिए रिकंडीशन कैसे करें। तो सबसे पहले कि बॉडी जो है इमोशनल मेमोरीज फ्रॉम द पास्ट स्टोर करती है, अभी तक हमने समझा इसमें, पूरी बुक में चैप्टर 4 तक ये सारा बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ। फिर अब बॉडी को हमें सिखाना है नई चीज,
क्या उस साइकिल को, जब उस लूप को तोड़ेंगे, कि जो हमारा जो लूप बना हुआ ना पहले, थिंकिंग फीलिंग और बीइंग का लूप, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से ही थिंकिंग फीलिंग बीइंग के, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं वही फील कर रहे हैं, जो फील कर रहे हैं वही हम बन रहे हैं, तो थिंकिंग फीलिंग और बीइंग, उसका जो लूप बना हुआ है, तो उसको तोड़ना है। तो उसको तोड़ने की शुरुआत होती है थिंकिंग से। थिंकिंग चेंज हुई तो फीलिंग चेंज हुई, फीलिंग चेंज हुई तो हमारा बीइंग चेंज हुआ। तो उस साइकिल को ब्रेक करना है, ब्रेक द साइकिल बाय टीचिंग द बॉडी हाउ द फ्यूचर फील्स। अब वो चेंज, थिंकिंग कहाँ से चेंज होगी, हम वो सोचेंगे जो हमें फ्यूचर में चाहिए, तो फिर हमारी जो जितने भी नर्व्स हैं वो एक साथ फायर वायर टुगेदर, दे विल स्टार्ट डूइंग द वर्क। अब इसको भी पिक्चर्स के साथ समझाया हुआ, ये मतलब 2-3 थिंग्स से, हर हर उसकी अलग 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 पिक्चर्स के साथ समझाया कि हम फंसे कैसे हुए हैं थिंकिंग फीलिंग के लूप में। तो जब हम सोचते हैं, अभी आप इस पिक्चर में बहुत क्लियर दिखा रखा है कि जब हम ये सोचते हैं, आई एम एंग्री, आई एम ओवर अंडरपेड, माय बॉस इज अनफेयर, माय बॉस इज सच अ जर्क, एंड ये अभी हमने पिछले एक पिक्चर में देखा, अभी आपको याद होगा तो, इस पिक्चर में कि ये कंपटीशन, कंट्रोल, इम्पेशंस, ईगो एंड सेल्फ एग्रेसिव जो भी है, ये सब हमारे थर्ड चक्रा से, यानी कि हमारे सोलर प्लेक्सस से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो जो हम सोच रहे हैं ना, वही हम फील कर रहे हैं, तो वो हमारे सोलर प्लेक्सस को अफेक्ट कर रहा है। वो एक विशियस सर्कल बना हुआ है। अब इसको ब्रेन में कैसे चल रहा है ये सब काम, कैसे एंगर न्यूरोपेप्टाइड्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस, बहुत इस चैप्टर में बिल्कुल क्लियर से कि न्यूरोपेप्टाइड्स हैं क्या, कैसे वो प्रोटीन्स काम करते हैं, कैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं, बहुत अच्छे से समझाया हुआ। अब इसको हम बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे कि जो थर्ड सेंटर है ना, वहां पर हमारी एनर्जी स्ट्रक हो गई, क्योंकि हम सोच रहे हैं बार बार। वो हमारे इस पिक्चर में आपको अपर पार्ट में, जहाँ ये पिक्चर इमोजी सा बना हुआ है, यहाँ पर ब्रेन की जो अपर पिक्चर है लेफ्ट में, अब टॉप पिक्चर, उसमें ये दिखा रखा है कि कहाँ कहाँ हमारी थिंकिंग्स की वो फंसी हुई है। और वो न्यूरोट्रांसमीटर, फिर उससे नीचे जो पिक्चर है वो ये दिखा रही है कि एंगर न्यूरोपेप्टाइड्स कैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस बना रहे हैं और कहाँ वो बैठे हुए हैं, उसकी वजह से हमारा सेंटर। तो ये क्या है, चक्कर बना हुआ है, चक्र बना हुआ है, एकदम लूप बना हुआ है, हमारे अपर चक्रा को ये डिस्टर्ब किए हुए और हम इस लूप में फंस गए हैं। इसी तरह से जब हम गिल्ट में होते हैं कि हमने गलत किया, हमने ये किया, हमारे साथ ऐसा हो गया, इसका ये हुआ, मेरी वजह से हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं ऐसा नहीं करती तो ऐसा नहीं होता, तो फिर हमारा सेक्रल चक्रा डिस्टर्ब हो जाता है, और वहां पर थॉट्स इन्फ्लुएंस फीलिंग्स एंड फीलिंग्स इन्फ्लुएंस थॉट्स, वो विशेष सर्कल बना रहता है। तो अब इस सब को फिर कुछ प्रैक्टिसेस शेयर की हुई है इस चैप्टर में। हर चैप्टर में एक मेडिटेशन है। इसका मेडिटेशन इस चैप्टर में जो है, मतलब शुरू से ही उन्होंने कहा कि नीचे वाले जो हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करके, जब हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को अपवर्ड्स, क्योंकि हमारी बॉडी में एक सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है जो हमारे पीछे, जो हमारे सैक्ट्रम से लेकर हमारी अपर टॉप तक, हमारे हेड के टॉप तक कनेक्टेड है, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है। जब हम नीचे की मसल्स को, इंटरसिंक मसल्स हमारे, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करके, अब उसका मोटा मोटा समझे कि जब हम मलासना में बैठते हैं, जिन्होंने योगासन करते हैं, या जब हम एक्सरेशन के लिए इंडियन सीट, टॉयलेट सीट्स पे बैठते हैं, तो जब हमारी नीचे की मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, जब हम यूरिन के लिए या वॉशरूम के लिए गए, तो अपने नीचे की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके हम होल्ड करें उस प्रेशर को, तो हमें नीचे की मसल्स को, अभी भी आप कर सकते हैं अपने एनएस को और अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, यानी कि अपने एनएस को आप ऊपर की तरफ खींचे, विलिंग मतलब इंटेंशनली उसको स्क्वीज करें, एंड आपके लोअर एब्डोमेन को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करें, तो फिर आपको जो प्रेशर फील होगा, यानी कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यानी कि एनएस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को खींचते हैं हम अंदर की तरफ, स्क्वीज करते हैं, तो हमें बिल्कुल उनके बीच में एक जगह प्रेशर फील होता है, वहां हमारा रूट चक्रा। फिर हमारे लोअर एब्डोमेन के बिल्कुल पीछे हमें फील होगा, जब हम लोअर एब्डोमेन को स्क्वीज करते हैं तो हमें जहाँ प्रेशर फील होता है वहां हमारा सैक्रल चक्रा है, और जब हम अपर एब्डोमेन को स्क्वीज करते हैं तो हमारा सोलर प्लेक्सस है। अब इन तीन को जब हम ब्रीथ करते हुए, इनहेल करके स्क्वीज करते हैं और होल्ड करते हैं, तो हमारी एनर्जी को हम ऊपर फील करते हैं। तो ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, हमारे सैक्रम से ऊपर की तरफ पुश करता है, ऊपर की तरफ खींचता है,
तो हमारी अपर एनर्जी सेंटर्स को एनर्जी मिलनी शुरू होती है, जो कि नहीं मिलते, जनरली नहीं मिलते। हम नीचे की एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। हाँ, मेडिटेशन जो रेगुलर करते हैं उनका थोड़ा सा कम चैलेंज होता है ये, बट जो मेडिटेशन रेगुलर नहीं करते, बट कई बार क्या होता है कि मेडिटेशन करते हुए भी हम इन चीजों के बारे में नहीं जानते, तो हमें पहुंचने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। ये सीधा सीधा ना गूगल मैप है अपनी एनर्जी को ऊपर खींचने का। ऐसे हम धीरे धीरे करके अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत टाइम बाद पहुंचते हैं, बट ये बिल्कुल ना क्लियर रोड मैप है एक तरह से, कि ये गूगल है, हमने ये डाल दिया और इस तरह से होगा। तो ये ब्रीदिंग टेक्निक्स और अपने कोर मसल्स को, एनर्जी को अपवर्ड स्क्वीज करके हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो हमारी प्राणा ट्यूब में जो चल रहा है, ये प्राणा ट्यूब है जो हमारी स्पाइन में होती है पूरी, हमारी रूट चक्रा से लेकर हमारे अपर मतलब क्राउन चक्रा तक, जहां ये दिखाई दे रहा है पिक्चर में। तो इसके थ्रू भी हम अपनी एनर्जी को ऊपर ले जा सकते हैं। फिर इसके बाद मतलब बहुत ब्यूटीफुल है, लास्ट में हम एक मेडिटेशन की शॉर्ट प्रैक्टिस करेंगे। फिर चैप्टर 6 टॉक्स अबाउट केस स्टडीज, जिसमें कि लोगों ने अपने बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को हील किया जो मेडिकल फील्ड में दे वर नॉट पॉसिबल टू हील, मेंटल और इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, और इनर वर्ल्ड से उन्होंने आउटर रिजल्ट किए। फिर उसमें बात करते हैं वो जेनिफर, टू एग्जांपल्स में आई वुड लाइक टू कोट हियर जेनिफर। जेनिफर जो है, शी हैज, डॉक्टर हैज डायग्नोज विद सेवरल न्यू इलनेसेस, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ इश्यूज थे, एंड उसके लिए ना खड़े होना भी मुश्किल था, बहुत मुश्किल। एंड लकीली हर हस्बैंड गो टू रीड द You Are the Placebo by Joe Dispenza. Then he attended his workshop and he took Jennifer also with him. Jennifer जब उसकी वर्कशॉप में जाती हैं जो डिस्पेंजा की, तो at that time she was not able to walk even, but when she till the last of the end of the workshop she walked herself, तो बिल्कुल उसकी लाइफ चेंज हो गई। जो डिसीज डॉक्टर ने बोला था ठीक ही नहीं हो सकती, शी गॉट क्योर्ड। तो दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ मेडिटेशन, बिकॉज जो डिस्पेंजा अपनी वर्कशॉप में मेडिटेशन कराते हैं, और आगे वाले एक चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे कि और क्या कराते हैं। तो वो हम सब कर सकते हैं अपने पेस पे, बहुत सिंपल बट इजी, बट उसके हम उसकी टेक्निकलिटी समझ रहे हैं। फिर इसी तरह से फेलिशिया का एक एग्जाम्पल है। फेलिशिया, उसको एक्जिमा था, बहुत सिवियर एक्जिमा, और मतलब उसने सालों तक उसका इलाज किया, 34 ईयर्स की होगी, और उसको वो जब 3 मंथ्स की थी ना, तब से वो स्किन इन्फेक्शंस और एक्जिमा की प्रॉब्लम थी उसे, एंड टिल 34 ईयर्स उसका कुछ भी नहीं हो पाया। बट लकीली शी हैपन टू मीट डॉक्टर जो डिस्पेंजा, एंड जो डिस्पेंजा से मिलने के बाद उसने मेडिटेशन एंड ये सब किया, एंड शी गॉट क्योर्ड। तो ये 2-3 एग्जांपल्स। ऐसे ही एक और चैप्टर भी केस स्टडीज का है, बट आई हैव नॉट कोटेड दैट बिकॉज दिस इज सफिशिएंट कि बहुत सारी डिसीजेस, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर भी केस स्टडीज के साथ स्टार्ट होता है, वहां पे एना की केस स्टडी है, इस चैप्टर में भी है, और चैप्टर 3 या 4 जो भी था जिसमें उन्होंने अपने बेटे की केस स्टडी शेयर की, बिकॉज केस स्टडी से हमें थोड़ा सा और उसकी क्रेडिबिलिटी बनती है। फिर हार्ट ब्रेन कोहेरेंस, हार्ट ब्रेन कोहेरेंस की बात की है, क्योंकि हमारे हार्ट की अपनी एक इंटेलिजेंस है। हार्ट ब्रेन कोहेरेंस, क्योंकि जो हम अपने हार्ट को, हार्ट और ब्रेन में कोऑर्डिनेशन नहीं है हमारे, दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ कहता है, और वहां दिक्कत आती है, तभी लाइफ में इतना प्रॉब्लम है। अंतरात्मा कुछ कह रही है, दिमाग कुछ कह रहा है, उनमें कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो हार्ट तो कुछ, क्योंकि अभी शुरू से ही उन्होंने बताया कि हमें एनर्जी सेंटर्स को अलाइन करना है, एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो जब हर एनर्जी सेंटर एक दूसरे अलाइन हुआ, जब पहले नीचे के एनर्जी सेंटर से हमने अपलिफ्ट की एनर्जी, फिर उन्होंने हार्ट की बात की, जो कनेक्टिंग चक्रा है, अपर और लोअर चक्रास में जो कनेक्शन है, जो लिंक है, तो वो जब हार्ट से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड अपर चक्रा में गया, वेगस नर्व के थ्रू, स्पाइनल कोड के थ्रू, एफरेंट पाथवेज बनते हैं उनमें, उनमें जब कोऑर्डिनेशन होता है तो ब्रेन को मैसेज मिलते हैं, फिर हार्ट से ब्रेन को मैसेज मिलने शुरू होते हैं। अदरवाइज हमारे हार्ट के मैसेज ब्रेन को मिलते ही नहीं, ब्रेन अपनी दुनिया में रहता है। तो फिर एक कोहेरेंस बनती है और आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आते हैं। तो हार्ट सेंड्स मोर सिग्नल्स टू ब्रेन देन द रिवर्स। हार्ट ब्रेन को, ब्रेन हार्ट को, दोनों के बीच में अगर कोहेरेंस हो गया तो हम क्लैरिटी, काम, इंट्यूशन, ये सब
और इसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस उन्होंने शेयर की कि हम ग्रैटिट्यूड में रहें, लव में रहें, कंपैशन में रहें, क्योंकि हर्ट की ना अपनी एक इंटेलिजेंस है। तो ये चैप्टर भी बहुत वंडरफुल है, पूरा पढ़ने का है। एंड फिर अपनी वर्कशॉप में जो एक बहुत पावरफुल टूल वो यूज करते हैं, एंड मैंने भी अपने कोर्स में इसको यूज किया है, माइंड मूवी कैलिडोस्कोप। वंडरफुल वर्क करता है, वंडरफुल। जितने भी लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया उस कोर्स के थ्रू, मतलब उनके शब्द बता नहीं सकते कि क्या थे। दे आर लिविंग द डिजायर्ड लाइफ। कुछ ही महीनों में उनकी लाइफ में चेंज आ गया। अभी मतलब 1-2 मंथ्स में ही दे आर जस्ट फीलिंग दैट। बट दिस इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, हमें कंटिन्यू करना पड़ता है। जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही मेडिटेशन, वैसे ही ये सब प्रैक्टिसेस, दे आर द पार्ट ऑफ लाइफ। हम ये सोचें कि अभी कुछ किया और फिर लाइफ लॉन्ग वो रहेगा, नहीं। जैसे खाना खाया अभी खत्म, नेक्स्ट टाइम फिर खाना खाना पड़ेगा, वैसे ही हमें प्रैक्टिसेस भी लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करनी पड़ती है। दैट्स व्हाई वी ऑल आर हियर, वी आर प्रैक्टिसिंग विद ईच अदर द ब्यूटीफुल प्रैक्टिसेस, लर्निंग न्यू वेज। अब माइंड मूवीज की बात करते हैं। माइंड मूवीज जो उन्होंने पहले बोला कि अपने फ्यूचर को हमें आज ही विजुलाइज करना है, आज ही। तो माइंड मूवी क्या है? वो विजुअल्स है। अब वैसे हम क्या करते हैं, जर्नलिंग में एफर्मेशंस राइट करते हैं, बट ही टॉक्स अबाउट माइंड मूवी। माइंड मूवी क्या है? हम अपनी एफर्मेशंस के विजुअल्स बनाते हैं अपनी ड्रीम लाइफ की। एफर्मेशन हम अपनी ड्रीम लाइफ को सेंटेंसेस में लिखते हैं, जर्नलिंग करते हैं, और माइंड मूवी में जो है हम उनके विजुअल्स क्रिएट करते हैं। और कैलिडोस्कोप जो है वो हमें एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, सबकॉन्शियस थ्रू कलर्स, इमेजेस एंड साउंड्स। तो इन दोनों को मिला के हम अपने ब्रेन की जो है थीटा ब्रेन वेव स्टेट्स को डीप रीप्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। क्योंकि कैलिडोस्कोप क्या है? ये विजुअल टूल है जो हमारे ब्रेन को, हमारे कॉन्शियस माइंड को रिलैक्स कर देता है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि जब तक कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव है तब तक सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं हो पाता। तो जैसे जैसे कॉन्शियस माइंड रिलैक्स होता है, जब हम ट्रांस में चले जाते हैं, तो तब सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग बहुत इजी हो जाती है। तो जब हम पहले क्या, वो अपनी वर्कशॉप में क्या बताते हैं कि पहले वो लोगों को ट्रांस पे ले जाते हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं, फिर उनकी माइंड मूवी पहले क्रिएट करा दी, उनको एग्जांपल्स दे दिए, ये है वो अपना क्रिएट कर लिया कि आप अपना फ्यूचर सेल्फ कैसे देखते हैं, उनके विजुअल्स, फिर उसके साथ में कुछ म्यूजिक्स, कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज के म्यूजिक ऐड ऑन करते हैं, वो एक छोटा वीडियो क्रिएट करते हैं, और वो उसको पहले देखते हैं और फिर ट्रांस में जाते हैं, और फिर उस ट्रांस की स्टेट में उस वीडियो को देखते हैं, ताकि वो सब कॉन्शियस माइंड, क्योंकि विजुअल में कलर्स भी हैं, इमेजेस भी हैं, और कैलिडोस्कोप के थ्रू हमने उसमें, मतलब कैलिडोस्कोप माइंड मूवी जो बनाई उसमें हमने साउंड्स भी ऐड की। तो साउंड्स इज द पाथवे टू लाइफ, क्योंकि साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। साउंड के साथ हमारे इमोशंस डायरेक्टली कनेक्टेड है। आप कोई भी सॉन्ग जब सुनते हैं जो आपके किसी पर्टिकुलर टाइम से एसोसिएटेड है, तो उस टाइम की, अभी भी आप सोचिए, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ये सॉन्ग सुनते ही आपको क्या याद आया? क्या याद आया? सोचिए, क्या याद आया? राजेश खन्ना, सिटिंग इन अ जीप। तो वो सारा, मतलब उसके साथ हमारी मेमोरीज एसोसिएटेड हैं। तो जब हम साउंड्स को अपने विजुअल के साथ ऐड करते हैं तो दे वर्क वंडर, और सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना बिल्कुल इजी हो जाता है। क्योंकि हम थेटा ब्रेन वेव स्टेट में जब डीप रीप्रोग्राम के लिए जाते हैं, पहले वो मेडिटेशन में ले गए, जब ट्रांस में चले गए, जब मोर सजेस्टिबल हो गए, क्योंकि जब हम ट्रांस में होते हैं तो हम सजेस्टिबल हो जाते हैं, तब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना इजी हो जाता है। जैसे कि जब हम ट्रांस में हैं तो हम सजेस्टिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, और जब हमारी ब्रेन वेव्स, तब हमारी ब्रेन वेव स्लो हो जाती है और हमारा एनालिटिकल माइंड स्लो हो जाता है। परंतु जब हमारी ब्रेन वेव्स हाई है, उनकी फ्रीक्वेंसी हाई है, यानी कि ब्रेन वेव्स बहुत स्पीडी है, बहुत ज्यादा है, तब हमारा एनालिटिकल माइंड भी बहुत हाई हो जाता है। तब हमारी ट्रांस और सजेस्टिबिलिटी कम हो जाती है। और जब हम म्यूजिक मेडिटेशन में होते हैं तब हम ट्रांस में होते हैं, और ट्रांस में होते हैं तो सजेस्टिबिलिटी बढ़ती है। इसी चीज का उन्होंने माइंड मूवी के थ्रू यूज किया, कि उस समय माइंड मूवी दिखाई अपने पार्टिसिपेंट्स को, एंड दे गॉट। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे केस स्टडीज भी शेयर किए हुए हैं कि आप उस पर्सन ने किया, उस पर्सन ने किया। इवन वन ऑफ केस स्टडीज आई एम गेटिंग समवट, कि एक पर्सन ने जो है माइंड मूवी जब वो देख रहा था, ट्रांस में था, तो उसको बहुत सारे कॉइन्स दिखाई दिए कि कॉइन्स, तो उसको समझ नहीं आया कि कॉइन्स का क्या मतलब है।
हम उसको अपने फ्यूचर की रियलिटी, बस उसने कॉइन्स उसमें डाल दिए और उसको दिखाई दिए, तो उसने फिर कुछ टाइम बाद उसकी एक फ्रेंड हु वाज सफरिंग फ्रॉम समथिंग, शी सेड कि आई हैव मेड माय विल एंड इन माय विल आई हैव गिवन यू सम पार्ट ऑफ माय प्रॉपर्टीज, सम पार्ट ऑफ माय एसेट्स, एंड और उस सेट में वो कॉइन्स थे, कॉइन्स वर द पार्ट ऑफ एसेट्स। तो क्योंकि वो ट्रांस में था, सजेस्टिबिलिटी बढ़ गई सबकॉन्शियस माइंड से। कई बार क्या होता है कि जब सजेस्टिबिलिटी बढ़ती है, ट्रांस में होते हैं हम, तो हमें डिवाइन मैसेजेस, फ्यूचर की इमेजेस भी उभर जाती हैं, इंट्यूशंस होती हैं, इंट्यूटिव पावर बढ़ जाती है ना। उसकी बात की है उन्होंने पीनियल ग्लैंड में, पीनियल ग्लैंड जो हमारी लाइफ का बहुत। फिर उसके अलावा उन्होंने वॉकिंग मेडिटेशन की भी बात की है, मैंने भी इसको बनाया था और आई हैव प्रैक्टिस दैट। तो वॉक विद एलिवेटेड इमोशन एंड इंटेंशन, जो आपके, वो बोलते हैं कि हमेशा सिर्फ बैठ के मेडिटेशन करें तब हम एलिवेटेड इमोशंस को और इंटेंशंस को सोचें, वो दैट विल नॉट वर्क। वो वर्क कर रहे हैं, परंतु अगर हम वॉक करते हुए उन इमोशंस को और इंटेंशंस को सोचें, मतलब वॉकिंग करते हुए मेडिटेशन करें, तो वो और ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि वो इनर ट्रांसफॉर्मेशन उससे और फास्ट हो जाएगी। क्योंकि वो कहते हैं कि आप अपनी चाल में वैसे ही चलो और एक्ट वैसा ही करो। उसको बोलते हैं, एनएलपी में भी इसको यूज किया जाता है, बिहेवियर मॉडलिंग, कि जस्ट मॉडल द बिहेवियर दैट यू वांट टू बिकम। ये सब चीजें ना आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। तो वॉकिंग मेडिटेशन में उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि आप अपने उन्हीं एलिवेटेड इमोशंस और इंटेंशन जो आप फ्यूचर सेल्फ में चाह रहे हैं, उसके साथ ही चलना भी शुरू करें और जीना भी शुरू करें, फील भी करें और एक्ट भी करें वैसा जैसे कि हो गया बस। जैसे कि आपको जब जॉब मिलेगी, जॉब मिलना एक थॉट है, पर उसके साथ इमोशन क्या आएगा, फीलिंग क्या आएगी, कि हम कॉन्फिडेंट होंगे, तो भी आप उसी कॉन्फिडेंस में जीना शुरू करो, तो यूनिवर्स विल थिंक कि ही इज सो कॉन्फिडेंट, जैसे उसको जॉब मिली हुई है, तो दैट विल वर्क फॉर यू, एग्जिस्टेंस विल वर्क फॉर यू। सो दैट्स व्हाई ही इंक्लूड्स वॉकिंग मेडिटेशन आल्सो इन द रूटीन, कि हम वॉक करते हुए भी वही चीजें करें। अब वॉकिंग मेडिटेशन एकदम से स्टार्ट नहीं होता, तो हमें कुछ कुछ नेचर में जाकर माइंडफुली वॉक करना, एड माइंडफुलनेस विद दैट। ये उस बुक में मेंशन नहीं है, ये मेरी अपनी थिंकिंग है कि ऐसा कर सकते हैं हम, और मैं करती हूँ ऐसा ही। मैं उसको एक रिकॉर्ड कर रखा है वॉकिंग मेडिटेशन को, एंड आई जस्ट sometimes in 1 year I put that, I just listen through 1 year that meditation, guided meditation, and I feel that. Then for some time I stop it and feel the nature, earth को feel करना, नेचर को फील करना, हर स्टेप को फील करना, तो वहां प्रैक्टिस हो जाती है फील करने की। और बाकी डे टू डे लाइफ में भी आप सब कर सकते हैं इसको। वॉकिंग मेडिटेशन वाज अ वंडरफुल थिंग। फिर चैप्टर 10 ये बात करता है कि स्पेस टाइम वर्सेस टाइम स्पेस की बात करता है। स्पेस टाइम 3D, हम जो है स्पेस टाइम में रह रहे हैं अभी, जिसमें रह रहे हैं 3D फिजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं, और डिजायर्ड क्या है, नॉन लीनियर पॉसिबिलिटीज हैं, क्वांटम रियल्म। पिछले वर्कशॉप में भी हम, पिछले भी सेशन में हमने बात की थी लास्ट 5 डेज पे। बिकॉज अभी नॉन रियलिटी में तो हम रह रहे हैं, परंतु ट्रांसफॉर्मेशन, सक्सेस और सुपर नेचुरल कहाँ है, बियॉन्ड द नोन। जब हम बियॉन्ड नोन में जाते हैं, अननोन वर्ल्ड में जाते हैं, चैप्टर 3 में इसमें बताया कि व्हेन यू गो बियॉन्ड दैट नोन, तो ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस। बिकॉज हमें लगता है कि अभी पॉसिबल नहीं है, बट एवरीथिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, एवरीथिंग इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। सो इन दिस चैप्टर ही एक्सप्लेन्स दिस टॉपिक, इट्स अ वेरी लेंथी टॉपिक। सो उसमें उन्होंने बताया कि जब हम मेटीरियलिस्टिक 3D वर्ल्ड में, न्यूटोनियन वर्ल्ड में कॉन्शियसनेस हमारी है कि हम समबडी हैं, हम समवन हैं, हम समथिंग हैं, हम समवेयर हैं, सम टाइम। बट जब हम क्वांटम फील्ड में एंटर करते हैं एज प्योर कॉन्शियसनेस, तो हम नोबडी बन जाते हैं, बस क्योंकि हमारी बॉडी का फीलिंग ही चला जाता है। जब हम क्वांटम फील्ड में मेडिटेशन के थ्रू एंटर करते हैं, तो हम वी बिकम नोबडी, नो वन, नो थिंग, नो वेयर, नो टाइम। मतलब टाइम, थिंग्स और इन सब का आभास खत्म हो जाता है, इन सब की फीलिंग खत्म हो जाती है। फिर जब इमैटेरियल वर्ल्ड में जाना है, यूनिफाइड फील्ड में जाना है, ऑथर टॉक्स अबाउट, इससे भी एक स्टेप आगे की बात करते हैं कि जो रियलिटी ऑफ द यूनिफाइड फील्ड है, जब हम सब कुछ हो जाते हैं। एक मिलिंद जी ने एक वीडियो शेयर की थी, और वो मुझे मिली नहीं, मैंने बहुत ट्राई किया। मिलिंद जी ने एक वीडियो शेयर की थी, उसमें वो लेडी इसी एक्सपीरियंस की बात कर रही है। शी वॉज इन कोमा, द लेडी वाज इन कोमा, एंड सडनली
In coma, she got some realization. She felt that she was everywhere. उसको ये फील हुआ कि अचानक वो सब कुछ हो गई है. She was with the parents, जो उसके पेरेंट्स जो है फ्लाइट बुक कर रहे थे आने के लिए कि उसका लास्ट टाइम आ गया. डॉक्टर हैज सेड कि बस ये शी विल नॉट सर्वाइव. उसके पेरेंट्स कैसे परेशान है आने के लिए, उसके सिबलिंग्स कैसे परेशान है उसके पास आने के लिए, इसी तरह से उसके हस्बैंड कैसे स्ट्रेस्ड है, डॉक्टर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं. वो कोमा में है बट वो सबको फील कर पा रही है. उन सब के बीच में ही वो जो लोग चले गए, उनको उनकी भी फीलिंग आई, वो उनसे भी मिली, मतलब उनको भी उन्होंने सुना, उनको भी जाना. वो हर तरफ हो गई, मतलब उसका एग्जिस्टेंस वो यूनिवर्स से कनेक्ट हो गई. एक एग्जांपल जैसे मैंने शेयर किया था कि वी आर द एनर्जी, वी आर द एनर्जी. जैसे कि एक वाटर वेसल है, उसको ग्लास को हमने एक बड़े पोर्ट में डाला, तो ग्लास में जो वाटर है और जो बड़े वेसल में वाटर है वो दोनों सेम है. अगर बीच में से हमने ग्लास की लेयर हटा दी तो वाटर वाटर में डिसॉल्व हो गया, सेम हो गया, वननेस आ गई, इट विल बिकम वन. इसी तरह से हमारी कॉन्शियसनेस जो है, बीच में बॉडी की ग्लास है, और जब वो ग्लास बॉडी खत्म होती है तो हम उससे फिर जब नोबडी नो वन नोबडी यानी कि सेकंड स्टेप से फिर जब हम एवरीबडी मतलब पूरी उसके साथ एग्जिस्टेंस के साथ मिल ही गए, हम एक हो गए, वी बिकेम वन, वी बिकम एवरीबडी. तो उस लेडी ने उसी एक्सपीरियंस को उसमें शेयर किया था वीडियो में. एंड सडनली शी रियलाइज्ड कि व्हाट इज द रीजन ऑफ हिज एलिमेंट, उसको प्रॉब्लम कहाँ थी. शी गॉट टू रियलाइज एंड शी केम आउट ऑफ कोमा, एंड विद नो टाइम, within few days she started recovering. Doctors was also shocked कि वो कैसे रिकवर हो रही है, बट असल में कुछ और हुआ था. she became one with all. she got to realize कि हुआ क्या. वो उसके रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किए थे, तो ये बिल्कुल एप्ट है वहां पर, बहुत क्लियर समझ आता है वहां पर वो. फिर चैप्टर 11 दैट टॉक्स, हमने यहाँ तक पढ़ा है उस चैप्टर को संडे के उसमें. एंड दैट टॉक्स अबाउट पीनियल ग्लैंड, द सोल ऑफ आवर, द सीट ऑफ आवर सोल. पीनियल ग्लैंड साइंटिफिक मतलब साइंटिफिकली समझें तो इट इज जस्ट अ ग्लैंड दैट हेल्प्स टू सेक्रेट द हॉर्मोन्स. मेलाटोनिन बनाता है, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बनाता है. मेलाटोनिन बनाना मेनली इसका फंक्शन है, साइंटिफिक वे में समझें तो इसको, जो हमारी स्लीप साइकिल को रिदम में लाता है. जब हम अंधेरा होता है, जब लाइट बंद होती है या अंधेरा हो जाता है, बिकॉज नेचुरली पहले वाले लोग जब लाइट्स नहीं होती तो दिन ढलते ही सो जाते थे ना, क्योंकि मेलाटोनिन बनना शुरू हो जाता था. अंधेरे के साथ मेलाटोनिन बनता है और जो हमें नींद में ले जाता है. और जब अंधेरा खत्म होता है, रोशनी होती है, तो फिर मेलाटोनिन बनना कम हो जाता है. अब साइंटिफिकली उससे समझे तो दिस इज द फंक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड. बट जो योगिक वर्ल्ड है और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो इससे बिल्कुल आगे की बात करता है कि ये फंक्शन नहीं है सिर्फ पीनियल ग्लैंड का, इससे कुछ अलग है. वो इसको बोलते हैं थर्ड आई, शिव नेत्र, तीसरी आंख. अब एक्चुअली जो है ये हमारे इंट्यूशन का सेंटर है, इससे हमारी पूरी लाइफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, हमारा जो थर्ड मतलब दूसरे वर्ल्ड से जो कनेक्शन है, इंट्यूशंस हैं, और जो डीपर मेडिटेशन की स्टेट्स हैं, और हमें जो डिवाइन मैसेजेस मिलते हैं, तो ये उसका सेंटर है. ये एंटीना है जो हमें दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, क्योंकि एक और वर्ल्ड है, यूनिफाइड वर्ल्ड, जिसे हमें कनेक्ट करता है. ये क्वांटम वर्ल्ड से हमें कनेक्ट करता है एक तरह से. तो पिनियल ग्लैंड इन सबको तो मेलाटोनिन और इनर रिदम को तो सेट कर ही रहा है, साथ में ये हमारा ये काम भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. तो जब ये एक्टिवेट हो जाता है ना, तो हमारे को मिस्टिकल स्टेट्स में ले जाता है और हमें हायर डायमेंशन और इनर विजडम से कनेक्ट करता है. इसके फायदे हैं इंट्यूशन, स्टिलनेस. अब इसकी एक्टिवेशन के बहुत सारे तरीके हैं. मैंने जब इस चैप्टर को पढ़ा तो इसके बारे में मैंने देखा कि क्या है. मैंने अपने वीडियो में भी, मुझे किसी ने आई थिंक ग्रुप में ही रिक्वेस्ट किया था कि इसके बारे में वीडियो बना, तो मैंने बना के डाली भी उसमें, जो जो मुझे समझ आया जितना कि ये है क्या. एंड एक्चुअली इट हैपेंस कि आपको डिवाइन मैसेजेस मिलने शुरू होते हैं जब आपका ये एक्टिवेट हो जाता है, और अपने आप से आपकी लाइफ में कोई रिदम सेट हो जाता है, एक अलग सा फ्लो आ जाता है. आपका इलेक्ट्रो बायोमैग्नेटिक जो फील्ड है वो एक फाइन ट्यून होने लगता है, आपकी लाइफ में एक फाइन ट्यूनिंग हो जाती है. तो
कुछ एक खाने पीने की आदतें, हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा मैटर करता है। और जब हम बिल्कुल आउटर वर्ल्ड से, सिर्फ आउटर वर्ल्ड के लेवल पे जीना शुरू करते हैं, तो ये इनएक्टिव हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसको भी बड़ी पिक्चर, बहुत अच्छी पिक्चर्स के साथ समझाया। इसकी सीट बताई कहाँ पर है, ये सारा इस पिक्चर में पिनियल ग्लैंड की सीट बता रखी है। और थर्ड वेंट्रिकल, सेरेब्रल एब्डक्ट, फोर्थ वेंट्रिकल, सेरेब्रम, सेंट्रल कैनल, ये इसके पाथवेज हैं यहाँ से यहाँ तक मैसेज जा रहे हैं। जब हम वो इंटरसिंक मसल्स वाला जब प्रैक्टिस करते हैं, तो जब हम ध्यान को ये अपने आज्ञा चक्र पर लगाकर ऊपर की तरफ अपनी एनर्जी को, फ्लो को लेके जाते हैं, तो ये एक्टिवेट होना शुरू होता है। फोकस, त्राटक, ये सब भी इसमें हेल्प करते हैं। अभी मैंने अपना वीडियो, जस्ट अ मिनट, लेट मी स्टॉप शेयरिंग। सो ये तो था इसका। जैसे मैं अभी कुछ 25 स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ काम कर रही हूँ, इसी पे ही, पिनियल ग्लैंड पे ही, उनके जिनके साथ हमें चैलेंजेस आ रहे हैं उनको मैनेज करने में, उनके बिहेवियरल इश्यूज, एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये सब चीजें इसमें मतलब करेंगे। तो मैं अब 3 दिन से उनकी वर्कशॉप्स चल रही हैं। कुछ टाइम पहले मैंने किया था, तो इसके बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। खुद मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, और मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ भी इसमें काम किया है कि पिनियल ग्लैंड पे। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस बुक को पढ़ने के बाद जितनी क्लैरिटी आई है ना, मतलब औसम, मजा आ गया, मतलब बिल्कुल क्लैरिटी आई है। फिर कुछ चीजें पिछली बार पिनाकी ने शेयर की, जहां जहां मैं अटकती हूँ तो मैं पिनाकी से भी बात कर लेती हूँ, इस बुक को उठा के फिर से पढ़ लेती हूँ, गूगल करती हूँ, बहुत कुछ सारा मिला के मुझे बहुत सारी चीजें समझ आती हैं कि करना क्या है। तो पिनियल ग्लैंड को अगर आप लोग एक्टिव करते हैं तो इट विल हेल्प। अगर आप चाहें तो मैं एक मेडिटेशन प्रैक्टिस आप सबके साथ शेयर करती हूँ अभी करम। आर ऑल ऑफ यू रेडी टू मेडिटेट? क्योंकि जो डिस्पेंजा की बात हुई, मेडिटेशन के बिना सेशन को खत्म करना, मुझे लगता है उनकी तौहीन होगी, क्योंकि वो हर चैप्टर में मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, एवरी चैप्टर। और मैं मतलब अभी बुक तो मैंने आप पढ़ी, बट मैं भी अपनी हर बात मेडिटेशन से ही खत्म करती हूँ। मुझे लगता है कि मेडिटेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। आपकी लाइफ में जो चैलेंज है, जो कुछ है, मेडिटेशन कैन सॉर्ट आउट। हर चीज को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं मेडिटेशन के साथ। तो जो डिस्पेंजा की बात चली है, तो वो तो प्योर कॉन्शियसनेस है, मतलब ही डिवाइन गिफ्ट टू एवरी, मतलब इस ह्यूमैनिटी को डिवाइन गिफ्ट है वो। कितने लोगों की लाइफ चेंज की, उनके केस स्टडीज पढ़ के मतलब मजा आ जाता है देख के कि कैसे, हाँ। और एक फेथ आता है अंदर की, यस, इफ दे कैन डू, व्हाई कैंट वी टू कैन डू, वी आर ऑल्सो सेम। तो फिर एक फेथ आता है, एक विश्वास बनता है। तो पीनियल ग्लैंड की एक्टिवेशन से रिलेटेड और बाकी सबको कंबाइन करके मैंने एक मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी शुरू करी। करें उसको 10 मिनट्स, 10 to 15 minutes। आर ऑल ऑफ यू Like, रेडी? I have one question for you. Like, how can यस we यस, efficiently activate the pineal gland? How we can activate that? या How आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिस। देखो, उसमें मैंने ना वीडियो में भी, इसमें मैंने डिटेल में ही बताया है जितना भी मुझे समझ आया। और उसके अलावा मेडिटेशन इज द बेस्ट थिंग। वही इंटरेस्टिंग मसल्स को हम स्क्वीज करके जब अपनी एनर्जी को ऊपर लगाते हैं, तो जहां जहां ऑब्स्टेकल है, देखो एक पाइप है, एक पुराना ट्यूब है, वो एक पाइप की तरह है, उसको समझो। आपके किचन के सिंक का पाइप या वॉश बेसिन के सिंक का पाइप जो है, वो कहीं ब्लॉक है तो उसमें वाटर फ्लो नहीं होगा। तो पहले क्या करोगे? उसकी ब्लॉकेजेस को क्लियर करोगे, तभी उसमें वाटर का फ्लो प्रॉपर होगा। वैसे ही हमारी प्राणा ट्यूब है, जो हमारे सैक्रम से लेकर हमारे टॉप तक जा रही है। अब सैक्रम में जब वो उस सैक्रम में जो है मूवमेंट्स है ना, वो इतनी सटल है कि हमें फील नहीं होती है, बट हर समय सैक्रम में मूवमेंट हो रही है। जब हमारी ब्रीदिंग जो है एक रिदम में सेट हो जाती है ना, तो प्राणा ट्यूब की ऑब्स्टेकल्स अपने आप खत्म होने लगती हैं, और फिर हमारी अवेयरनेस जो है ऊपर उठती है, कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट होती है, और अपने आप से पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होने लगता है। उसके अलावा कुछ प्रैक्टिस हैं, जैसे कि हम सोने से 2-3 घंटे पहले कम से कम, या अब ज्यादा नहीं कर सकते तो 1 घंटा पहले सारी स्क्रीन्स बंद कर दो, और रात को सोने से पहले बिल्कुल अंधेरे में सो। बिकॉज लाइट इज फेक एंड डार्कनेस इज रियलिटी। डार्कनेस इज रियलिटी, इट इज एटर्नल। अंधेरा एटर्नल है। तो अंधेरा जब आंख बंद करके, और आपके पास आसपास बिल्कुल डार्क करने का नहीं है,
तो आप, क्योंकि मेलाटोनिन नहीं बन पा रहा ना, और मेलाटोनिन नहीं बनता, वो पिनियल ग्लैंड का काम है, उसको हमने काम नहीं करने दे रहे, हम स्क्रीन के साथ सो रहे हैं, लाइट्स ऑन करके सो रहे हैं, पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट होने ही नहीं दे रहे हैं हम लोग। अगर हम लाइट्स को बंद कर दें, अपनी आंखों को, अगर पॉसिबल नहीं है लाइट्स ऑफ करना, तो अपनी आंखों में ब्लाइंड फोल्ड लगाइए। जैसे मेरे रूम में कई बार क्या होता है कि वी आर स्लीपिंग इन बेडरूम, मेरे हस्बैंड टीवी देख रहे हैं, लाइट्स ऑन है, एंड मेरा सोने का टाइम है, मुझे जल्दी उठना है सुबह, तो आई जस्ट यूज द ब्लाइंड फोल्ड, मैं दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करती, आई हैव ब्लाइंड फोल्ड नियर माई टेबल ऑलवेज। मुझे दिन में सोना है, नाप लेनी है, पावर नैप, तब भी मैं ब्लाइंड फोल्ड लगा लेती हूँ कि मेरा मेलाटोनिन बनना शुरू हो जाए, मेरा पिनियल ग्लैंड अपना काम करने का उसको मौका दूं मैं। अगर इस पिनियल ग्लैंड को काम करने का मौका नहीं दे रहे ना, वो तो हमारे लिए, हमारी सर्विस के लिए बैठा है, बट हम उसको आने नहीं दे रहे, हमने दरवाजा बंद किया। सो दिस इज द बेस्ट वे। एक टूथपेस्ट में हमारे फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड भी ना पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने में ऑब्स्टेकल है। तो आप अपनी टूथपेस्ट को चेक करें, जंक फूड्स, हमारा लाइफस्टाइल, बहुत ज्यादा एक्सपोजर लाउड साउंड्स और म्यूजिक्स के लिए, ये भी उसके पीछे रीजन है। तो इन सब चीजों से, और मेडिटेशन तो हर चीज का सोल्यूशन है ही मिले मनीष, हर चीज का सोल्यूशन मेडिटेशन है। तो इसके लिए अभी मैंने बताया कि हम अपने आप जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, मतलब अपने आप स्टेप बाय स्टेप नहीं, हम अपने आप तो बस ढूंढते रहते हैं कि कब तुक्का लग जाए और हमारा सही काम बैठ जाए, परंतु हमारे Ranga ji, पास एक रोड मैप मिल रहा है, तो हम उसको उसके थ्रू करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे कि मैंने अब 3 दिन मैंने बोला कि बच्चों के साथ मैंने प्रैक्टिस शुरू की। आज एक बच्चे ने, तो मतलब मैंने उसको कार्ड दिया, फ्लैश कार्ड, ही कुड रीड द लेटर्स, ही कुड रिकॉग्नाइज द कलर्स। 25 में से कलर्स तो आई थिंक 10 बच्चों ने कर लिया था, उसमें लगभग 8 ईयर से लेकर 16 ईयर्स के बच्चे थे। बच्चों पे ही काम कर रही थी मैं, स्कूल में हूँ तो उन पे करती रहती हूँ काम, शायद उनको फायदा हो जाए, और बहुत चेंज भी आता है क्योंकि मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो उसमें क्या है कि कुछ म्यूजिक है, फ्रीक्वेंसीज हैं, उनको भी हम सुन सकते हैं, और मेडिटेशन प्रैक्टिस, इंटरेस्टिंग मसल्स के साथ में मेडिटेशन प्रैक्टिस, ये इसमें हेल्प करेंगी। एनीथिंग एल्स मनीष? yeah, I just want to say that I also read a lot about pineal gland activation, what I learned is that हम्म, the pineal gland is activated only when we live in our natural state. यस ऑफ Natural कोर्स, state is like stress-free, happiness, not worries, and यस things यस, that is not just about meditation. Meditation is just one part of that. Like when we feel stress, we do meditation to get out of stress. But I see that throughout the day we have to live in our natural state, which is like free of stress, free of anxiety, like just यस being in यस, that state. यस यार, यू आर एब्सोल्युटली राइट मनीष। नाउ द चैलेंज इज कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, आप स्ट्रेस कहाँ कहाँ अवॉइड करोगे? बच्चों के साथ, अपने वर्क प्लेस पे, अपना वर्क में कहाँ कहाँ कॉम्पिटिशन्स, ये सब चीजें, आपकी वर्क की डिमांड, किस किस को अवॉइड करोगे, कितनी चीजों को? तो अब उसको रेगुलेट, उस स्ट्रेस में कैसे जिया जाए हैप्पीनेस के साथ, तो वो मेडिटेशन तरीका है। मेडिटेशन आपको उन सब में माइंडफुल होना सिखाता है। मेडिटेशन क्या है? माइंडफुलनेस, अवेयर होना कि हम वो थॉट नहीं है। देखो थॉट्स आती है, स्ट्रेस क्या है? कोई थॉट आई है स्ट्रेसफुल, बट हम उस थॉट को रियलिटी मान लेते हैं, थॉट को रियलिटी मान ली हमने कि हम वो थॉट हो गए, हम उस थॉट के साथ वन हो गए। बट जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमें इतनी अवेयरनेस आती है कि ये थॉट अलग है और मैं अलग हूँ। आई एम ओपन स्काई, दिस थॉट इज जस्ट लाइक अ क्लाउड, क्लाउड आएगा जाएगा, बट मैं यही स्टेडी हूँ। आई एम स्टेडी, आई एम फर्म, आई एम एटर्नल, आई एम परमानेंट, like this sky. I am open sky. These thoughts, these feelings, this stress, they are temporary. Even happiness is temporary. हम हैप्पीनेस को तो छोड़ना नहीं चाहते, टेंशन से बस बाहर निकलें जैसे मर्जी हो जाए, बट हैप्पीनेस में हमेशा रहना चाहते हैं। हमें हैप्पीनेस और स्ट्रेस दोनों छोड़ने, दोनों ही छोड़ने हैं एक दिन, दोनों छोड़ने हैं। हम ना हैप्पीनेस है, हम ना स्ट्रेस है। तो ये अवेयरनेस कहाँ से आएगी, ये समझ कहाँ से आएगी, विजडम कहाँ से आएगी? ये आएगा मेडिटेशन से, अवेयरनेस आएगी उससे कि ना तो हम हैप्पीनेस हैं, ना हम जॉय हैं, और ना हम स्ट्रेस हैं। See, what I think is meditation is one part of that, but I think belief and your thoughts are like also या equally important. What I believe, yeah. यस ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो So there उसमें you live with उसमें that thought. हर चैप्टर में यही तो बात की गई ना कि आपको अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, सारी बात ही की थिंकिंग, फीलिंग और बीइंग पे है। पूरी की पूरी बुक थिंकिंग, फीलिंग और बीइंग पे चलती है कि आप जो सोच रहे हैं वही फील कर रहे हैं और फिर वही बन रहे हैं। तो हम थिंक करेंगे कि हमें हैप्पी रहना, तो हम हैप्पी रहेंगे, फिर वही हैप्पीनेस फील करेंगे और हम हैप्पी हो जाएंगे। सिंपल, बस वो थिंकिंग, फीलिंग, बीइंग का पूरी बुक ही इस पे चलती है।
तो मेडिटेशन इज अ पार्ट, बट मेडिटेशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट. ये हेल्प करता है, हेल्प करता है. आई टोटली अग्री कि मेडिटेशन इज नॉट ऑल द थिंग, बट मेडिटेशन इज अ पार्ट एंड दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज अ पाथवे. ये जीपीएस है. अब जीपीएस है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जीपीएस के बिना हम भटक जाएंगे. तो मेडिटेशन इज जीपीएस. जीपीएस इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन. फाइनल डेस्टिनेशन तो इन सबसे ऊपर उठना है. हम प्योर कॉन्शियसनेस क्वांटम फील्ड के साथ, मतलब उस ग्लास को हटा के पानी के साथ पानी हो जाना है. वननेस. वी विल बिकम एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग. वो फाइनल गोल है हर सोल का. जब हम यहाँ आए थे ना इस संसार में, इस 3D वर्ल्ड को एंजॉय करने के लिए, तो फाइनल टारगेट तो वही था कि वापस वही होना है. अब ये जन्म जन्मांतर की यात्रा करके जाएंगे, बट कैसे अच्छे से करेंगे कि जब हम उसकी अपनी रियलिटी को याद रखेंगे कि ना तो हम हैप्पीनेस है, डिटैचमेंट, डिटैच रहना, खुशी में भी डिटैच होना. क्योंकि अब बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इस टॉपिक को लूं, बहुत लंबा टॉपिक है ये, कि हम इसको शॉर्ट में बताती हूँ कि दिस टू शैल पास. मैं हमेशा एक बात याद रखती हूँ, जब मैं खुश होती हूँ तब भी मैं बोलती हूँ दिस टू शैल पास, एंड जब मैं दुखी होती हूँ तब भी कहती हूँ दिस टू शैल पास. नथिंग इज परमानेंट. ना हैप्पीनेस परमानेंट है, ना सैडनेस परमानेंट है. और वही दैट इज द मीन्स, मेरी लाइफ के ना ये 3 वर्ड्स है ना, 3-4 वर्ड्स हैं, ये मेरी लाइफ का वो है कि दिस टू शैल पास. वो डिटैचमेंट का वो है. सो मेडिटेशन करें छोटा सा. सो प्लीज बी सीटेड, कंफर्टेबल, क्लोज योर आईज. सब अपनी आंखें बंद करेंगे. एंड आई वुड रिकमेंड कि आप सभी प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, क्योंकि मेडिटेशन में हम सब किसी बायोमैग्नेटिक फील्ड में होते हैं, और जब हमारी कॉन्शियसनेस दूसरों के कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होती है तो कुछ वंडरफुल रिजल्ट है, जो ग्रुप मेडिटेशन का जो काम है. तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल टू टर्न ऑन योर कैमरास. बिकॉज कई बार एनर्जी एक्सचेंज हो जाते हैं. कर लीजिए. बिकॉज बीइंग एनर्जी हीलर, I recommend everyone when I take the meditation sessions to turn the cameras. Yet it is your choice if you are not comfortable. Okay. Sit, relax. Take 2-3 long deep breaths. Inhale and feel the rise of navel. And with exhale, feel the fall of navel. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Now, with inhalation, we will squeeze the lower 3 chakras muscles. As I have explained, squeeze your reproductive organs and reproductive muscles and exhalatory muscles, your lower abdomen, your upper abdomen, one by one. Firstly, we will squeeze the lower muscles only, the anus and the reproductive organs muscles. Inhale, squeeze, engage the muscles of root chakra, hold, exhale, and release. Inhale once again and squeeze the root chakra muscles. Hold and exhale. Inhale, squeeze the root chakra muscles. Hold and exhale. Now we will engage the sacral chakra part also. Means we will squeeze the lower abdomen along with the root chakra area muscles, means reproductive and exhalatory organs. 2 parts, 2 chakras we will
squeeze at the same time. Inhale and squeeze the root chakra muscles and sacral chakra. Squeeze the lower abdomen. Hold. Exhale. Inhale once again and squeeze the two chakras muscles, lower energy centers. Hold. Exhale. Once again. Inhale. Engage both the parts muscles. Hold. Exhale. Now it's time to engage the solar plexus. Also, we will squeeze the upper abdomen also with this. Now inhale. Firstly, squeeze the lower part muscles, then the middle part, middle abdomen, lower abdomen, and the upper abdomen at the same time. Start inhaling. And engage all three parts muscles, lower abdomen, root chakra, upper abdomen at the same time, and hold. Exhale. Inhale. Engage all the lower three chakras muscles. Hold. And in the meanwhile, feel that energy is rising through your spine to the upper centers. Exhale. Inhale. Engage the muscles of all three parts. Hold. And keep feeling the muscle. The cerebrospinal fluid is rising up through your spine. Your prana tube is getting activated and energy is flowing upward. Exhale. Once again, inhale. Engage all the muscles. Hold and keep feeling the energy is rising up. Hold. Exhale. Now for a few seconds, breathe normally and keep your attention onto your Ajna chakra. Your pineal gland. Feel. Now we will move to a beautiful practice of Anulom and Anulom Vilom Pranayam. We will breathe through our left nostril. Hold. We will hold it for 4 counts. Inhale for 4 counts. Hold for 4 counts. And then exhale through the right nostril for 6 counts. Then hold for 2 counts. And in the same way, then we will again inhale for 4, hold for 4, exhale for 6, then hold for 2. I will guide you. Just start Anulom Vilom Pranayam. Inhale, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6. Hold, 2. Inhale, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6. Hold, 2. Inhale, 2, 3,
4. Hold. 2, 3, 4. Exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Hold. 2. Inhale. 2, 3, 4. Hold. 2, 3, 4. Exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Relax. Breathe normally. Sitting in meditation position. Keep your attention onto your Ajna Chakra. Now we will practice humming Bhramri Pranayam for 6 count. 6 times we will do humming. Inhale and exhale with humming sound. Relax and breathe normally, sitting in meditation position and feel the vibrations. And now we will squeeze all our lower 3 parts muscles, our anus, reproductive organs, our abdomen, and then we will tuck our chin with our throat. This is called Mahabandh. When we close all the energy center and we will put our attention onto our pineal glands on the top of our head. So squeeze your inner muscles. Inhale and exhale. Squeeze your all inner part muscles. Keep your attention onto your head. And if possible, roll your tongue and touch your upper palate at this time. Inhale. We will repeat it 2 more times. Once again and try to hold it for longer. Relax. Once again, inhale and exhale.
Stay in the moment, relax, stay in the moment for some time. Now, take 2-3 long deep breaths and come back to the present moment, wiggling your fingers, toes. Rub your hands, touch your face, and joining your hands, be grateful to the existence, to everything, to yourself, around you, everything, every sound, every light. And just go to the divinity. And gradually and slowly open your eyes. Thank you so much for participating and for this divine energy. It is a long practice. After this, we have to wait. We have to surrender to the divine. After this practice, we should lie down in the Shavasana and we should wait for the divine. Means after this, the last and the important, most important part is to surrender to the divine without any expectations. Just surrender to the divine and lie down in Shavasana. Around, means as per your comfortability, minimum 15 to 20 minutes minimum are suggestible over here. When you do this process, after that you should lie down for some time. Then the real results happen because energy gets settled down wherever it is to go. We have done our process, and this squeezing, holding, it should take longer. Time was lagging, so that's why I have cut it short, but it takes time. So thank you so much, everyone, all the divine angels, for this beautiful evening. Thank you so much. Thank you so much, Sanjana. Thank for you, my this. pleasure. I was eager to listen the summary of this book as I started with you people, but couldn't continue as Sunday is my morning work. My husband We have is to. all his space, the time that I giving to him. So I was eager, and I'm reading alone also means as per my own time. But I wanted to listen from you. Thank you so much for this, and especially the meditation that you did. Thank Just you. I'm feeling so relaxed after a hectic schedule of my school. Thank you. Thank you. Thank you. It's my pleasure. Thank you. Thank you हमें बोलना चाहिए, you know. Yes. संजना, लोगों के पास बहुत इंफॉर्मेशन है, बताने के लिए ना हिम्मत चाहिए. And the way you conducted the whole session, it's very deep and profound. मतलब FELD का sessions बहुत we धीरे धीरे ना improve कर रहे हैं. Like we are moving into a space where things are making a difference in our life. We are not just sharing a book or just sharing a insights from a book. Even the last session was phenomenal. Last W session था. बहुत अच्छा था. I have also ordered the book and I have got the copy. Yeah, so it's very important that आज मैंने एक बहुत अच्छा पोस्ट डाला LinkedIn में, उसको जरूर पढ़िएगा. Where I was talking about skill set and mindset. Skill set, yeah, hi, wow, beautiful, Sumedha ma'am. Sumedha ji, wonderful. Skill set हम सबके पास है. Unmute yourself, Sumedha ma'am. You're mute. Yeah. I just purchased yesterday. I couldn't resist it. I especially went
in the rain and got this book and came. That's Thank wonderful. you so much. My pleasure. The skill set is like you can develop your skills anyway, but to Hmm. make those skill set work for you, you need to have that mindset. अगर आपका mindset नहीं है ना, you cannot take it to the next level. सही, बिल्कुल. So it's like ये सब meditation. चीजें ना, एक हर चीज का जो है एक कॉम्बिनेशन है सब चीजों का. हम्म. हम एनएलपी की बात करें, हर चीज अवेयरनेस पे. एनएलपी व्हाट इज दिस दैट इज द अवेयरनेस अबाउट एक्सटर्नल वर्ल्ड, बट अवेयरनेस तो एक्सटर्नल वर्ल्ड से ही तो स्टार्ट होगी ना. तो Exactly. And बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. I also mentioned there's a deep connection between meditation and NLP, beliefs of excellence. Beliefs of Of course. excellence ना पूरा meditation के ऊपर ही आधारित है, अगर आप उसको ध्यान से course. देखोगे. बिल्कुल वहाँ पे भी. we talk about one portion which is all about resources. And NLP का fundamental purpose यही है कि आपको आपकी resources के साथ connect करवा देना. सही, बिल्कुल ठीक That है. is only possible when you are at a meditative state. Because only then you get inward and you get connected to the resources which you already have, and that gives you the solutions that you're looking for. Yes, of हमें course. क्यों मिलता है solution? वो इसीलिए मिलता है ना, सारा कुछ अंदर ही है. Meditation is a journey towards insight. Recording in progress. So from outside we get in insight. Meditation gives us that route. वो रास्ता बना देता है अंदर आने का. And as you deep dive inside yourself, you start getting connected to the resources which you already have, and that gives you the solutions. Whenever you're stuck in any situation, any challenge, and you want to come out of it, as you rightly said, Sanjana, the starting point is meditation. It is just a starting point. As you said, GPS, actual GPS here. With unless you get inside, you cannot connect to your own resources. और एनएलपी में हम ये भी बोलते हैं कि लाइक मतलब बेहतर से बेहतरीन कोच वो होता है जो कभी सलाह नहीं देता. वर्ल्ड्स बेस्ट कोच विल नेवर गिव एनी सजेशन or advice. That person will help you to connect to your own resources, so that next time you do not need to come to or talk to anybody or get in touch with anybody to get things done in your way. Yes, absolutely. That is the role of the best coach, your best mentor. Of course. क्योंकि that is what NLP says. For example, अगर मैंने आपको सलाह दे भी दिया ना, it will not work for you, because मैं आपको सलाह दे रहा हूँ मेरे अपने रिसोर्सेज के हिसाब से. मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए ये सही होगा. How do I know कि वो आपके लिए सही होगा? Because if you do not have access to the resources which I have, you can never make it happen in your life. इसीलिए क्या होता है ना, आप हम लोगों को एडवाइस देते हैं, फिर हम बोलते हैं यार वो सजेशन हमसे ले तो लेता, लेकिन करता खुद ही का है. Naturally, because आपने शायद 10 resources को कनेक्ट करके उसको सजेशन दिया है. He probably have connected only 2 resources. 2 रिसोर्स के हिसाब से उसको जो करने का सही लग रहा है वो वही करता है. So meditation gives you access to those your own resources. This book, why it is talking about becoming supernatural, it is saying that you are already supernatural. The only thing is you don't know. So the journey towards achieving that supernatural state is inward. That's why it's all about meditation. That's why it's all about mindfulness. And Sanjana, you're doing a phenomenal job. Like इस किताब को आप पिछले 2 सेशन में जहाँ पे लेके गए हैं, I could see that you're adding a lot of value to people's life. If one person got excited to buy this book, your purpose of taking this session is fulfilled. Thank you so much. And this is our purpose कि हम जो भी पढ़ें वो सबके साथ, मतलब जो हमने लिया ना, इस संसार को बांटें. Because this world is an echo point. तो हम जो मतलब अपने आसपास के, बस ऐसे कि अपने आसपास के 5 लोग सोट कर लो, वो बढ़िया हो जाने चाहिए. तो हम 5 से ज्यादा लाइफ को अफेक्ट कर पाए, और वो और ज्यादा एक बड़ी चीज हो जाएगी ना. बहुत अपनी लाइफ का पर्पस ही बना लो कि अपने आसपास से 5 लोगों को एटलीस्ट हेल्प करो कि दे शुड लिव टू देयर पोटेंशियल, दे शुड गेट द पर्पस ऑफ देयर लाइफ, और एक अच्छी लाइफ जिए खुश. Yeah, और फाइनली the best way to identify it is to ask yourself कि मैं जो अभी एक्शन ले रहा हूँ, how it is going to impact the humanity.
Yes. So, what I am doing, how I am doing and why I am doing, what, why, how, ये 3 चीजों को क्लियर करके चलते चलो बस। हर चीज में, इवन खाना भी खा रहे हैं ना, उसमें भी what am I eating, how am I eating and why am I eating। सो कभी मतलब ये अवेयरनेस की है ये 3 क्वेश्चन, व्हाट, व्हाई, हाउ। तो Absolutely. जब ये 3 क्वेश्चन आप पूछना शुरू करते हो ना अपने आप से हर बात में, तो आप उतने उतने अवेयर होते जाते हो। तो फाइनली यू गेट द की, जो हम सब ढूंढ रहे हैं। सब तलाशी तो है ना किसी चीज की। Absolutely, I agree. तो इन 3 को क्लियर करते चले, तो आई थिंक लाइफ बिकम्स अ मैराथन एंड यू गेट योर डिजायर्ड लाइफ। बिकॉज बहुत बार हम कहते हैं कि यार चाहते तो नहीं थे हम, ये हो गया। वो कैसे गया? क्योंकि हमने 3 क्वेश्चन नहीं पूछे खुद से। जब 3 क्वेश्चन पूछते हैं तो अवेयरनेस हैपेंस। Beautiful. फिर फिर बाद में वो नहीं सोचना पड़ता कि ये पता नहीं कैसे हो गया। दिस इज संजना, कहना। ये मैंने कहा ये तो बहुत जन्मों का पुरुषार्थ भी है। बिल्कुल और, बिल्कुल। और बहुत सारे ये लोग जो हम जुड़े हुए हैं, ये हम्म, कुछ हमारी पारमीज हैं जिसको गुड डीड्स कहते हैं, की हुई हैं। बिल्कुल। इसीलिए ये लक्ष्य पे हम लोग बात कर सकते हैं, अदरवाइज कहाँ सब करते हैं। और हाँ, कहाँ इतने साल पहले हम मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारा बिल्कुल। समय आया है तो अच्छे से हम निभा रहे हैं, अच्छी बात है। आप सुमेधा मैम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम किसी पर्पस से सब कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल सभी बिल्कुल। सोल्स कहीं ना कहीं कोई पर्पस तो कनेक्ट करता ही है सभी सोल्स को। ऐसे नहीं मिलते, आज से पहले हम कभी नहीं मिले, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पर अब ऐसा लगता है कि बहुत सालों से जानते हैं एक दूसरे को सब। हम हम पहले से जानते थे तभी कनेक्ट हुए हैं। पहचान अभी हुई, जानते थे। हाँ, बस वो अनवाइल अभी हुआ, ये पहले से ही अभी पहचान थी कहीं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाएंगे तो शायद पता भी चल जाएगा वी आर ऑलरेडी नो। क्या करेंगे वहां जाके? I'm just saying कि ना कि आप ये जातक की कथाएं पढ़ो ना, तो हर चीज समझ में आती है कि हम्म। चीज कब कही गई, क्यों कही गई, कहाँ कही गई, क्या पर्पस था। तो जातक उसमें की कथाएं आपने भगवान बुद्ध की जो है वो उन्हीं की जी बात जी कर रही है ना आप? जी 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 6 वॉल्यूम है उसके। तो उसमें बहुत सारी अच्छी किताबें हैं और ऐसे कथाएं हैं। जैसे भिक्षु लोग बैठ के बात करते थे तो भगवान हमेशा आके पूछते थे कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्या बातचीत चल रही है। तो ये बोलते थे कि ऐसे ऐसे ये बात चल रही है। तो वो फिर कुछ ना कुछ कहानी सुनाते थे। वो सुनाने के बाद फिर वो तालमेल बिठाते थे कि इस समय ये कौन था, देवदत्त कौन था, मैं कौन था, सारिपुत्र जो उनके और मोगलान जो उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थे शिष्य, वो कौन थे। फिर वो सारी चीज समझाते हैं कि ये अभी नहीं, ये पहले से भी ऐसे हुआ हुआ है। हम लोग सब लोग कहीं ना कहीं मिलते हैं और फिर आगे का पूरा संसार चलाने के लिए जब तक हम पूरे अपने दुखों से मुक्त नहीं हो जाए, डे टू डे कह लो भले, ऐसे ही चलता रहेगा संसार। सो वी आर, आई एम सो हैप्पी आई एम कनेक्टेड विद ऑल ऑफ यू एंड अच्छी चीज सुनने को मिल रही है। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सुमिता मैम, थैंक Friday यू सो satsang. मच। I just want to Friday add ATM something satsang. that, as Swami Vivekananda says that, believing in yourself is believing in God. So whatever we are doing, we should believe fully that, whatever we intend to do, it is our duty and it's our true self, basically. That's how you activate your true power. And when you believe in yourself, you are believing in God. And that's the highest power you can have. थैंक यू सो मच। Very true. All right, so can we disperse? Yeah, Yes. thank you so much, Good everybody. night. Thank you so much, everyone. Thank you. Good night. Good night. Thank you. Sanjana, thanks a lot again. Yes. It's my pleasure. Thank you so And much, Sumant. Rajeshwari, so nice to see you. I always feel very good looking at you. I feel happy. Thank you. Thank you, Samina ma'am. Rajeshwari is पिनाकी, good to see you. आप तो वैसे ही हीरो ही हो।
सबके हीरो। I agree. Yes. तो अभी आपका नाम हीरो पिनाकी। हाँ. जो मुझे रख दीजिए। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे अंदर जो भी क्वालिटीज आपको दिख रही है वो सब क्वालिटीज हाँ. आपके अंदर भी है, Pinocchio इसलिए will आपको, make a movie out of you. है ना। तो अगर आपको Bye. मुझको अंदर हीरो दिख रहा है तो आप भी हीरो ही हो। I'll have to leave now. I'm Yes, leaving. let's. It's Yes, dinner bye. time. Great day. Bye. Good night. बाय Yes. बाय Good night. एवरीबॉडी। Wonderful बाय session, phenomenal session. बाय, Yes. वेरी नाइस। Thank you Thank so you. much. Thank you so Thank much. you so much. Manish, Thank you so much. Manish, special thanks to you for asking all those questions. मुझे तो हिम्मत ही नहीं होती कि बहुत अच्छा था। He's a curious child in our group. Yes. Yes. Thank you. Thank you so much, everyone. Bye. Thank you for that. Yeah. Bye. Bye.